Hello everybody, welcome to Vani Academy. So as you all know that we have already started our medieval India part and we have completed our ancient part. So those who have not watched that particular videos, so you can go to our channel Vani Academy and watch them. This is me Palak Agnihotri and I am going to teach you this NCERT course. And before starting, I would like to tell you that Vani ma'am has started her foundation course on Indian polity on Unacademy platform. So if you want to take plus subscription for your UPSC preparation, you can put her referral code Vani Mehra to avail 10% discount, as well as she will provide her personal mentorship. So for more information, you can see the description box given below. Now let us start our topic, that is Ibn Battuta and the excitement of the unfamiliar. So subcontinent, here the word subcontinent refers to the Indian subcontinent, which was a part of the global network of communication during the time period of 14th century. So here we can list certain facts that in the particular time of 14th century there was a global network of communication in the different parts of Indian subcontinent. So he traveled extensively through these lands. He visited shrines, many shrines he visited, many learned men, he visited many rulers, and he was also officiated as Qazi. He was given the post of a Qazi. He enjoyed the cosmopolitan culture of urban centers, where people used to speak Arabic, Persian, Turkish, and other languages. So these people who spoke different kinds of languages and shared the common culture of and on the urban centers, in the different urban centers, those peoples used to share ideas and information which were related to the story about men noted for their petty king who could be both cruel and generous, and about ordinary people. So these were the topics which were the main attraction of the discussion for those peoples. Anything which was unfamiliar was particularly highlighted in order to ensure that the listener or the reader was inevitably impressed by the accounts of different yet accessible world. So he listed two kinds of plants also, which were of coconut and pan. So these two plants were completely unfamiliar with his audience. His audience word refers to the audience of Morocco, where the Ibn Battuta belonged. So those peoples were totally unfamiliar with coconut and pan, because this lists the geographical condition of that particular place and how much it is different from India. And you can see that other different types of geographical conditions and climate is important for different kinds of plants and cereals. So here we can list the geographical condition also, but he described them in a different way, which shows his strategy of representation. Ibn Battuta and Indian cities. Ibn Battuta found subcontinent full of exciting opportunities. He founded the subcontinent which was the full of exciting opportunities. किसके लिए? Those people who were skilled. Okay, so these cities were densely populated, these cities were prosperous, except for the occasional disruptions. What was the occasional disruption of these cities? The causes were wars and invasion. During the time period of wars, any war or any invasion, these things were not present at that time. Otherwise the cities were crowded, cities were crowded of India, and they were bright and colorful markets. Variety of goods were exchanged during that particular time period. Delhi was the city which was having a great population, and it was the in the views of Ibn Battuta, it was the largest city of India. And Daulatabad in Maharashtra was no less than Delhi. It was a rival of Delhi, we can say. So here bazaars, he listed that bazaars were not only for the economic transaction, but those bazaars were the hub of social and cultural act also, as mosques and temples were also present in the bazaar. Nowadays also you can see that today's market and hub
and bazaars are also a great hub of social and cultural act. Indian agriculture was productive because of the soil fertility in the Indian agriculture, and this allowed the farmers to cultivate 2 crops per year or 2 crops in a year. The subcontinent, here Indian subcontinent was well integrated with the inter-Asian network of trade and commerce. So, if we get a question in mains about the trade and commerce, the situation or the we can get the question in this history part also, what was the trading and commercial activities during the past medieval India, and if you have ordered, if the question comes that compare those situations, so you can get a great idea from this by reading these things, so you can easily compare. इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ही ज़्यादा मांग थी. दो इंडियन टेक्सटाइल सच एज कॉटन, फाइन मसलिन, सिल्क, ब्रोकेड एंड सैटन वर greatly demanded in West Asia and Southeast Asia. So the unique system of communication was also established as state took special measures to encourage merchants. Those special measures were taken by state for the encouragement of merchants, and these measures was in the trade route, on the trade route several inns and guest houses were set up, because if a merchant has to travel, so he will see his comfort and many other things. So if there will be availability of inn, so food की availability हो जाएगी, guest house रहेगा, so they can take rest while their mission or their travel. Efficient portal system के बारे में बताया. तो efficient portal system allowed merchants to not only send info and remit credit across long distance, but also it was used to dispatch goods required at short notices. So here the Bernier and the degenerated East. So Bernier, that is Francois Bernier, compared and contrasted what he saw in India with Europe in general and France in particular, because he belonged to France, and he compared and contrasted the situations of Europe, India and France. His ideas were policy makers were influenced by his ideas, and they used these particular ideas of Bernier to take a right decision. So his travels in the Mughal Empire is marked by detailed observation, critical insights and reflections. He also compared Mughal India with contemporary Europe, and he also listed the fact that Europe was far superior than India. His representation of India works on the model of binary opposition. The model was binary opposition, where India is presented as the inverse of Europe. India को बिल्कुल उल्टा बता दिया उन्होंने यूरोप का. तो द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, अब यहाँ पे लैंड ओनरशिप का क्वेश्चन आता है, क्या है वो? So these are some facts you must read by yourself, because these are also equally important. So according to Bernier, one of the fundamental difference between Mughal India and Europe was the lack of private property in land. In the former, means there was a lack in the private property in Mughal India. Means Mughal India में private property नहीं हुआ करती थी, ऐसा उनका कहना था कि जो जितनी प्रॉपर्टी थी तो उनका जो ओनर रहता था वो क्राउन ओनरशिप रहती थी लैंड की, मतलब जो ओनर रहता था वो मुगल एम्परर रहता था, और जो एम्परर था वो सारी प्रॉपर्टी और लैंड को ओन करता था, वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता था अपने नोबल्स के बीच में. और ये चीज़ें जो हैं वो डिज़ास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसके लिए? इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए. तो ये जो परसेप्शन है ये बर्नियर के अकाउंट्स में बस नहीं है, बल्कि बहुत सारे ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में पाया गया जो 16th एंड 17th सेंचुरी के थे. जो क्राउन की ओनरशिप है लैंड की, तो बर्नियर के हिसाब से उनका ये कहना था कि जो लैंड ओनर्स है वो इस वजह से अपनी प्रॉपर्टी अपने चिल्ड्रन को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, यानी कि वो अपने जो प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे भी नहीं सकते अपने, क्योंकि ये जो ओनरशिप है वो तो मुगल एम्पायर के अंदर है. सो दे वर एडवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सस्टेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन. द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी in the land had therefore prevented the emergence of the class of improving landlords. Okay, these points are very important. This then is how Bernier saw the Mughal Empire.
सो मुग़ल एम्पायर को उन्होंने इस तरह इस नज़रिए से देखा, और उनके जो किंग थे, मुग़ल एम्परर थे, उन्हें क्या बोला कि किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस, ये भिखारियों और जंगलियों के राजा हैं। तो इट्स सिटीज़ एंड टाउन्स वर र्यून्ड एंड कंटेमिनेटेड, उनकी जो सिटीज़ थी और टाउन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मैले थे, किससे, इलेयर थी, फील्ड जो थे, एंड इट्स फील्ड ओवर स्प्रेड विद बुशेस एंड फुल ऑफ पेस्टिलेंशियल मारिशेस, एंड ऑल दिस वॉज बिकॉज, जितनी भी कंडीशन उन्होंने लिस्ट की वो किसकी वजह से थी, उनके हिसाब से, ब्रिटेन के हिसाब से, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड की वजह से थी। जो भी सब कुछ हो रहा था वो क्राउन ओनरशिप की वजह से था। तो क्यूरियसली नन ऑफ द मुगल ऑफिशियल, अब मुगल ऑफिशियल के डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें लिस्ट नहीं की गई हैं, जो चीज़ें इन ट्रैवलर्स के अकाउंट में लिस्ट की गई वो चीज़ें मुगल ऑफिशियल के डॉक्यूमेंट्स में नहीं थी। तो अबुल फजल जो थे 16वीं सेंचुरी में ऑफिशियल काउंसिलर थे अकबर के रीन के, उन्होंने डिस्क्राइब किया लैंड रेवेन्यू को एज remuneration of sovereignty, a claim made by the ruler on his subjects for the protection he provided rather than as a rent on the land। ठीक है, ये क्लेम करते थे रूलर, ये प्रोटेक्शन के लिए है ये सब, हाँ, रेंट एक तरह से, दैट ही ओन्ड। It is possible that European traveler regarded such claims as rent because land revenue demands were often very high. However, this was actually not a rent, nor even a land tax, but a tax on the crop। अब ना ही ये लैंड टैक्स था और ना ही ये रेंट था, ये क्या था, एक ये क्रॉप्स के ऊपर टैक्स था। इसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे अपन चैप्टर 8 में। बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन था उसने वेस्ट थ्योरिस्ट को वो किया, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस किया 18th सेंचुरी से। और द फ्रेंच फिलोसफर मोंटेस्क जो थे, जिनके बारे में 9th की NCERT में हम पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उन्होंने यूज़ किया, फॉर इंस्टेंस यूज़ दिस अकाउंट, उन्होंने इस अकाउंट को यूज़ किया डेवलप करने के लिए एक आइडिया जो कि है ओरिएंटल डेपोटिज्म के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग जो रूलर थे एशिया के, यानी जिन्हें द ओरिएंट और द ईस्ट जिसे कहा जाता है, जो रूलर्स थे एशिया के, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी इंजॉय करते थे अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, और हु वर कैप्ट इन कंडीशंस ऑफ सब्जुगेशन एंड poverty, arguing that all land belonged to the king and that private property was non-existent. According to this view, everybody except the emperor and his nobles barely managed to survive. This idea was further developed as the concept of the Asiatic mode of production by Karl Marx। अब कार्ल मार्क्स ने भी इसे क्या बता दिया, इस आइडिया को डेवलप करके, द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इन द 19th सेंचुरी उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंडिया और उसके जो आसपास की दूसरी एशियन कंट्रीज़ थी कॉलोनियलिज्म के पहले, सरप्लस वॉज एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। दिस लेड टू, ये किस चीज़ को करता था, दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ द सोसाइटी दैट वॉज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनॉमस एंड इंटरनली एग्लिटेरियन विलेज कम्युनिटीज़। The imperial court presided over these village communities, respecting their autonomy as long as the flow of surplus was unimpeded। This was regarded as stagnant system। अब इस stagnant system को कार्ल मार्क्स ने पूरी थ्योरी दी इसके बारे में, और यहाँ पे ये भी फैक्ट लिस्ट किया गया था कि या तो वहाँ पे बहुत ही पुअर लोग होते थे या तो वहाँ पे बहुत रिच नोबल्स होते थे, सिर्फ इस क्राउन ओनरशिप की वजह से लैंड की, और वहाँ पे मिडिल क्लास जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं। वाइल बर्नियर्स प्रीऑक्यूपेशन विद projecting the Mughal state as tyrannical is obvious, his description occasionally hint at a more complex social reality। For instance, he felt, उन्हें लगता था कि जो आर्टिशन है उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है अपनी मैन्युफैक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो प्रॉफिट होते थे दोज वर अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। सो मैन्युफैक्चरर्स वर कॉन्सिक्वेंटली एवरीवेयर इन डिक्लाइन। तो हर जगह जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो बहुत ज़्यादा गिरती हुई हालत में थे, डिक्लाइन हो रहे थे, कम हो रहे थे। उसी समय पे ही कंसीडर्ड दैट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रीशियस मेटल फ्लोड इनटू इंडिया एज मैन्युफैक्चरर्स वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर।
अब देखो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो एक्सचेंज, अब देखो ये तो बाकी चीज़ें हैं ही पढ़ने के लायक, लेकिन यहाँ पे लिस्ट करने लायक बात क्या है कि जो एक्सचेंज होते थे वो गोल्ड और सिल्वर के रूप में होते थे। सिल्वर और गोल्ड जो था भारत में आता था अपने अगर वो मैन्युफैक्चरर्स बाहर देते थे तो। अब हमको अगर कंपैरिजन करने के लिए आ जाता है, इफ़ वी गेट द कंपैरिजन दैट कि ट्रेड का और जो कंपैरिजन है मॉनेटरी एक्सचेंज है वो पास्ट से लेके अभी तक का आप बताइए। तो हम बताएंगे कि हड़प्पन टाइम पे बार्टर सिस्टम यूज़ होता था ज़्यादातर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बताएंगे गोल्ड कॉइन्स कब से शुरू हुए, तो कुशान्स जो थे उनके टाइम पीरियड से गोल्ड कॉइन्स इशू होने लगे थे, ठीक है। इसी के साथ साथ in fact during the 17th century about 15% of the population lived in towns. This was on average higher than the proportion of urban population in Western Europe. In the same period, in spite of Bernier's described Mughal cities as a Cape towns. Mughal cities को उन्होंने क्या बताया, Cape towns, by which he meant, उनका मतलब था towns that was on the imperial camp मतलब राजा के उसके लिए लिखा गया है, ठीक है। he believed that these came into existence when the imperial court moved in and rapidly declined when it moved out. He suggested that they did not have viable social and economic foundation but were dependent on imperial patronage. यहाँ पे उनका जो डिपेंडेंस है नॉर्मल टाउन्स का, मुगल सिटीज़ का इम्पीरियलिज्म में, या उन तो जो सोशल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन है वो भी मतलब इनका जो ऐसा डगमगाया हुआ सा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन भी होना ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट्स का हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है, तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिकली अच्छी होती हैं। जबकि अगर हम सारी चीज़ों को अगर एक गवर्नमेंट के उसमें रख देंगे और कोई भी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन नहीं रहेगा तो इकोनॉमी की अच्छे से ग्रोथ भी नहीं होती है। तो एज इन द केस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, बर्नियर वॉज drawing an oversimplified picture. And there were all kinds of towns, manufacturing towns भी थे, trading towns भी थे, port towns थे, sacred centers थे, pilgrimage towns भी थे. Their existence is an index of the prosperity of merchants, communities and professional classes. Merchants जो थे वो often strong community मतलब थी उनकी, या किनटाइज थे जो कि उनके खुद ही वो ऑर्गेनाइज करते थे कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज़। तो वेस्टर्न इंडिया में इन्हीं ग्रुप्स को क्या कहते थे, मर्चेंट के ग्रुप्स को महाजन्स कहते थे, और महाजन्स के चीफ को क्या कहते थे, सेठ कहते थे, ठीक है। लेकिन अर्बन सेंटर्स में जैसे कि अहमदाबाद है ना, तो वहाँ पे महाजन्स जो थे वो कलेक्टिवली रिप्रेजेंट किए जाते थे किसके द्वारा, एक ऐसे चीफ के द्वारा जो मर्चेंट कम्युनिटी का चीफ होता था, जिसको नगर सेठ बोलते थे। दूसरे अर्बन ग्रुप्स भी आए जैसे कि फिजिशियंस जिनको हम हकीम और वैद्य कहते थे पुराने ज़माने में, टीचर्स जो कि पंडित और मुल्ला हुआ करते थे, लॉयर्स जो कि वकील हुआ करते थे, पेंटर, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स एक्सेट्रा। वेल सम डिपेंडेंट ऑन इम्पीरियल पैट्रनेज, कुछ इम्पीरियल पैट्रनेज पे डिपेंड थे, कुछ अपनी लिविंग बनाते थे सर्व करके दूसरे पैट्रन्स को, जबकि जो और दूसरे थे वो ऑर्डिनरी पीपल को क्राउडेड मार्केट्स में और बाजार में सर्व करके बनाते थे। अब ये लास्ट टॉपिक पे हम पहुँचते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सोशल इश्यूज़ में हमको काम आएगा। और यहाँ पे हम तीनों राइटर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे या दोनों राइटर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि जो अकाउंट्स लिखते थे ट्रैवलर्स, उन दोनों ट्रैवलर्स जो बर्नियर हैं और इब्न बतूता, उन दोनों के अकाउंट्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे साथ में मिंगल्ड रूप में। तो वुमेन स्लेव, सती एंड लेबरर्स। तो ट्रैवलर्स हु लेफ्ट रिटन अकाउंट्स वर जनरली मैन। अब हमने ये फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज जो पढ़ा था, जिसने भी नहीं देखा प्लीज़ आप पीछे जाके वीडियो देख लीजिए। जो ट्रैवलर्स होते थे वो राइट करते थे अपना अकाउंट्स, यूजुअली वो मैन होते थे, विमेन नहीं होती थी। and sometime intrigued by the condition of women in the subcontinent. Sometimes they took social inequities for granted as a natural state of affairs. For instance, slave जो होते थे वो ओपनली मार्केट में बेचे जाते थे, जैसे कि कम्युनिटीज़। यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में हम लिख सकते हैं कि कैसे उस ज़माने पे इंसानों की खरीदी बिक्री होती थी एक कम्युनिटीज़ के रूप में, जैसे कम्युनिटीज़ होती हैं। एंड वह रेगुलरली एक्सचेंज एज गिफ्ट के तौर पे उन्हें दिया जाता था। तो जब इब्न बतूता मार्च किए सिंध में तो उन्होंने घोड़ा खरीदा, कैमल खरीदा, स्लेव्स खरीदे और किसके लिए, गिफ्ट करने के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को। जब वो रीच किए मुल्तान पे, ही प्रेजेंटेड द गवर्नर विथ अ स्लेव एंड
horse together with raisins and almonds. Muhammad bin Tughlaq informed Ibn Battuta was so happy with the sermons of preachers. अब इब्न बतूता के बारे में लिखा हुआ है कि बहुत हैप्पी हुए प्रीचर्स से, sermons, उनकी sermons से. नसीरुद्दीन नाम था उनका. दैट ही गेव हिम 100, वो इतने खुश हुए इब्न बतूता उनकी प्रीचिंग से नसीरुद्दीन की, उन्होंने 100,000 टंकाज कॉइन्स जिसको कहते हैं एंड 200 स्लेव्स उनको भी दे दिए. ये हमको दिखता है कि इब्न बतूता के अकाउंट से कि देयर वॉज कंसिडरेबल डिफ्रेंशिएशन अमंग स्लेव्स. अब स्लेव्स में भी बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन था. कैसा कि जो फीमेल स्लेव्स होते थे वो सर्विस में रहते थे सुल्तान्स की, और जो कि एक्सपर्ट होती थी म्यूज़िक और डांस में. इब्न बतूता एक इंसिडेंस के बारे में बताते हैं कि सुल्तान की सिस्टर की जब शादी हुई थी तो उन्होंने ऐसी स्लेव्स जो हैं उनका म्यूज़िक और डांस एंजॉय किया था वहाँ पे. ठीक है. और कभी कभी जो सुल्तान है वो इन फीमेल स्लेव्स को कब लगाते थे कि कुछ नोबल्स की अगर देखना हो, गुप्तचरी करनी हो, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए भी. तो स्लेव्स वर जनरली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर. डोमेस्टिक लेबर के लिए भी जनरली यूज़ किए जाते थे स्लेव्स. तो इब्न बतूता ने ये देखा कि उनकी जो सर्विस थी पर्टिकुलरली इंडिस्पेंसिबल थी, जैसे कैरिंग वुमेन ऑन एंड मैन ऑन पैलिंक्विंस और डोला. अरे कभी कभी जो ये आप देखते हैं ना टीवी में या पहले के ज़माने में कार्ड वगैरह में जो डोली होती है जिसमें शादी के बाद लड़की को ले जाया जाता है, तो पैलिंक्विन उसको कहते हैं या डोला कहते हैं. तो पैलिंक्विन बियरर का काम भी करते थे ये स्लेव्स जो थे. तो इन स्लेव का जो प्राइस था, तो फीमेल स्लेव्स का जो था वो रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वॉज वेरी लो, एंड मोस्ट फैमिलीज हु कुड अफोर्ड टू डू सो केप्ट एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ दैम. तो यहाँ फीमेल स्लेव्स की बात की गई है. डोमेस्टिक लेबर का जो काम करती थी उनका प्राइस बहुत लो होता था, और कुछ फैमिलीज जो अफोर्ड कर सकती थी 1-2 रख लेते थे वो लोग. तो कंटेम्प्रेरी उस ज़माने के यूरोपियन ट्रैवलर्स जो होते थे, राइटर्स जो होते थे, उन्होंने हाईलाइट किया है ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन कि बहुत क्रूशियल था. वो मार्क करने के लिए वुमेन का जो रोल है वो डिफरेंस जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न सोसाइटी में, उस डिफरेंस को मार्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. नॉट सरप्राइजिंगली बर्डियर चोज द प्रैक्टिस ऑफ सती फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन. उन्होंने विमेन की कंडीशन सती के फॉर्म में भी बताई कि जो विमेन होती थी वो लोग खुशी खुशी डेथ को एम्ब्रेस कर लेती थी, गले लगा लेती थी अपने हस्बैंड के साथ उनकी चिता में बैठ के अपने शरीर का त्याग कर देती थी. लेकिन कुछ लड़कियों को, कुछ विमेन को इसके लिए फोर्स किया जाता था कि जाओ मरो ज़बरदस्ती. मीन्स कुछ तो अपनी मर्जी से करते थे, लेकिन कुछ लोगों को ये फोर्स किया जाता था. However, women's life revolved around much else besides the practice of sati. सती के अलावा भी उनकी लाइफ जो है रिवॉल्व करती थी बहुत सारी अलग चीज़ों में, जैसे कि देयर लेबर वॉज क्रूशियल फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. वो लेबर का भी काम करती थी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में. वुमेन जो मर्चेंट फैमिली से होती थी वो पार्टिसिपेट करती थी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, और कभी कभी वो मर्सेंटाइल डिस्प्यूट जो होते थे उनको कोर्ट तक भी लेके जाती थी, कोर्ट ऑफ लॉ तक भी. और ये भी हम देख सकते हैं कि जो वुमेन होती थी seems unlikely that women were confined. It therefore seems unlikely that women were confined to the private spaces of their home. यहाँ वुमेन की कंडीशन दी गई है. ये ज़रूरी नहीं था कि वो घर पे बस रहती थी, उनके बहुत भी अलग काम भी दूसरे होते थे. तो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक था और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. अगली थीम के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए. सो प्रेजेंटली थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वानी अकेडमी. We are here to empower, involve and encourage you. Thank you so much and have a nice day.